factors. Now I'm trying to move on towards the theoretical framework of the long run performance. What are the different theories that we have, so we can understand and then how we can implement those theories. We have three different theories. Only we have three theories here. सर जी जी जी. सर अभी हमने जो अभी अभी हमने पहले पढ़ा ये साइज और जो बुक वैल्यू और सेक्टर्स जो सेम होना चाहिए आईपीओ एंड नॉन आईपीओ फर्म्स का सर ये लॉन्ग टर्म की बात हम कर रहे हैं ना जी लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ. शॉर्ट रन में ऐसा कुछ नहीं होगा. शॉर्ट रन में एक दिन, ओके 2 दिन, 5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ लॉन्ग रन और की उसी बात को कर. ये सर और उसी को सपोर्ट करने के लिए थ्योरीज होंगी हाँ जी, लॉन्ग रन की बात करूंगा मैं. ठीक है. There are only three theories that we have that is associated with the long run performance. And जो सबसे पहली theory है that is the impresarial Fed hypothesis. यहाँ मैं इसको highlight कर रहा हूँ. We have three different theories. Number one है impresario or Fed hypothesis. Fed hypothesis का मतलब है that the charm to get high returns that actually faded. We can say that the impression that we will be getting high returns in short as well as in long run, it actually fade once we are trying in run. ठीक है. लॉन्ग रन के अंदर ये फेड होता जाता है. क्या वो मैं बता देता हूँ. State that the process of IPO issuance does not instantly determine the value of a new stocks. The overvaluation of shares therefore implies abnormal excess return earned by investor at the start of trading. But when investors earn excess return on the listing day, this consequently correct the overpricing and the result in lower return over the long run. यानी जो मैंने कहा कि रिटर्न ज्यादा होते हैं, the prices of the share actually faded over the number of days and number of years, and the return that we want to get in long run will not actually exist. That's why we can say that the investor can obtain negative returns. तो ये इसका मतलब होता है. The second is, ये सारे theory एक जैसी हैं, आपस में लिंक कर रही हैं, but the second theory is divergence of opinion hypothesis. We can classify that there are two kind of investors. One is optimistic investors and second is the pessimistic investors. Both have their own different determination that how they can find out the value of the share. So the question is that optimistic means that we will be getting high returns, and pessimistic means that we will be getting very small returns or we will not be getting a high returns. But the question is that the optimistic and pessimistic investors, the opinion of both the optimistic and pessimistic investors can diverge to a single path because prices can correct themselves. और जो optimistic है कि investors जो है वो return होगा या ज़्यादा होगा, तो actually दोनों की जो है या return कम होगा. दोनों की जो opinion है that actually diverges on a single point, and then we can find out that the shares can correct themselves in the market, and then they will be getting positive returns, but as long as they are trying to hold those shares, they will not be getting substantial returns, so they can actually obtain a negative returns. And the last important theory is the window of opportunity hypothesis. That is window of opportunity का मतलब ये होता है कि that we can classify this window of opportunity that in case of a boom period, in case of a high trading volume, जिसको मैं कहता हूँ कि boom market होती है, when there is a boom, you will be trying to float your IPO. यानी मार्केट यानी इन्वेस्टर्स, अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट बताता है कि मार्केट रिटर्न ज्यादा होगा, एंड वंस द मार्केट रिटर्न वुड बी हाई, यू विल बी गेटिंग हाई रिटर्न्स. ऐसे ही है जी. अभी हमने पढ़ा कि जब इन्वेस्टर सेंटीमेंट या मार्केट रिटर्न ज्यादा होता है, एंड इफ यू वांट टू फ्लोट योर शेयर्स, you will be getting maximum returns, you will be getting high returns, इसलिए कि market return benefit कर रहा होता है आपको. That's why because of market return you will be getting a higher price, and then we can find out the underpricing would be higher in case of short run. Underpricing ज्यादा होती है short run के अंदर. Window of opportunity का मतलब है कि in case of a boom period, if you want to float your shares, you will be getting high returns in short run. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि अंडर प्राइसिंग और अंडर परफॉर्मेंस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अंडर प्राइसिंग एंड अंडर परफॉर्मेंस बोथ हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. क्यों अंडर प्राइसिंग? मैंने कहा था अंडर प्राइसिंग, जब मैं कहता हूं ना अंडर प्राइसिंग, 10 रुपए और 15 रुपए का डिफरेंस मैंने बता दिया. 10 रुपए ऑफर प्राइस है और 15 मार्केट प्राइस है. चले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ जी, बात समझ आती है. मैंने ये कहा कि अंडर प्राइसिंग और अंडर परफॉर्मेंस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है.
और अंडर प्राइसिंग, मैंने कहा कि ये अंडर प्राइसिंग, ये 10 रुपए का शेयर है और मार्केट प्राइस है वो 15 रुपीज है। ये है मार्केट प्राइस 15 रुपीज और ये अंडर प्राइसिंग है। ये जो डिफरेंस है दैट इज द अंडर प्राइसिंग, दैट इज अ रिटर्न, and this underpricing is 15 for 50%. This is a short-term scenario that we have. So if we issue a share at 10 rupees and the market price on the listing day is 15 rupees, you will be getting 50% return. But on the other hand, the market price is 13 rupees and the market price, offer price is 13 and market price is 15. And 2 by 15 इसको मैं करूँ अगर, तो 2 by 15, 18% return. We will be getting 18% return. So I'm trying to make two scenarios here in which the underpricing would be higher, in which the underpricing would be higher, underpricing would be low. ये underpricing ज़्यादा शायद इसलिए होगी है क्योंकि shares will be issued in hot market. There is a window of opportunity that the market is growing, market is booming, and you are trying to float your shares to get maximum return. So in this case, the investors will be getting maximum returns. And now we know that the prices can correct. बार बार यही कह रहा हूँ, फर्स्ट थ्योरी इम्प्लिसिट हाइपोथेसिस में या डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन हाइपोथेसिस मैंने ये कहा कि प्राइस रिवर्ट होना शुरू हो जाती है। प्राइस कम होते 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 शायद यहाँ रुक जाएगी, प्राइस यहाँ रुक गई, तो इसका मतलब है अब यहाँ जाके ये प्राइस जो है वो रुक हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, प्राइसेस क्योंकि अपने पास रिवर्ट हो रहा है तो यहाँ तक आ गई, बट इट विल नॉट कीप इट कांस्टेंट एट 30 रुपीज, बिकॉज 3 इयर्स की, 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखनी है तो प्राइस नीचे चली जाएगी, प्राइस नीचे जाके कहीं रुक जाएगी, 8 रुपए पे रुकेगी या 9 रुपीज पे रुक जाती है। सो जिसकी अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है वो शायद रुकते रुकते चले कम कर दूं 9 हो जाती है, यहाँ 9 पे रुक जाता है। सो अंडर परफॉर्मेंस, अंडर प्राइसिंग वुड बी हायर, द चांसेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस वुड बी लोअर। ये 10 से, यहाँ से चले मैं अंडर परफॉर्मेंस निकालना चाहता हूँ 10 से, अंडर परफॉर्मेंस वुड बी लोअर, लेकिन यहाँ मैं इसको निकालना चाहता हूँ चले 8 पे चली जाती है। आप 13 और 8 का डिफरेंस लें या 9 का डिफरेंस लें, अंडर प्राइसिंग वुड बी लोअर, अंडर परफॉर्मेंस वुड बी हायर। तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है तो अंडर परफॉर्मेंस कम होती है, अंडर प्राइसिंग कम होती है तो अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, इसलिए कि द प्राइस विल मूव टू इट्स इक्विलिब्रियम। 15 रुपए का शेयर जो है वो अपनी रिवर्ट होना शुरू हो जाता है, तो रिवर्ट होकर यहाँ रुक जाता है 12 पे 13 पे, लेकिन फिर इसको मैं कह रहा हूँ कि 1 साल तक होल्ड करें तो प्राइस शायद 9 पे जाकर रुक जाती है, 9 पे या 10 पे जाकर रुक जाती है, 9 पे रुक जाती है प्राइस। सो द अंडर परफॉर्मेंस जो है, अंडर परफॉर्मेंस यहाँ से मेजर कर रहा हूँ 10 और लाइन के कह रहा हूँ, तो अंडर परफॉर्मेंस शायद 10% होगी। तो हायर द अंडर प्राइसिंग, लो द अंडर परफॉर्मेंस, बट हियर वी आर सेइंग दैट ये इन दोनों का डिफरेंस है, प्राइस आते 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 प्राइस कम होगी, अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो हम इसको लिखें 5 और 13 को मैं डिफरेंस लूँ तो ये मेरे पास अंडर परफॉर्मेंस नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव, इसको मैं देखना चाहूँ तो 5 को डिवाइड करें 13 से, तकरीबन रफली 35% बनता है, तो 35%। सो लोअर द अंडर प्राइसिंग, हायर द अंडर परफॉर्मेंस, और जब अंडर परफॉर्मेंस मेरे पास कम होती है तो इसमें इट मींस दैट द प्राइसेस कैन रिवर्ट बैक। सो window of opportunity means that you will be getting positive returns in short run, but window of opportunity shows that underpricing would be higher, the underperformance would be low. But generally speaking, if we are not talking about the window of opportunity, we are trying to float our shares and underpricing would be lower. So underpricing would be lower, there is a probability that the chances of underperformance would be high. तो ये इस तरह persist करता है, और इसी तरह ये actually we completed theories here, 3 theories मैंने इसको डिस्कस कर ली है, और अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन से मेथड हैं, कैसे इसको मेजर करना है, ये कैसे मेजर होगा। सिर्फ 2 मेजर अभी आज लेना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मेजर हैं। So we can compute these buy and hold normal returns and then cumulative. There are different methodology पे आ रहा हूँ, 1 मिनट। So this is the methodology that we have. The literature use different theories and then we are trying to estimate returns. So this is the first model that we have, that is a buy and hold abnormal returns. That is buy and hold abnormal returns. Second model that we need to discuss today is the cumulative abnormal returns. 2 मॉडल हैं, 2 मेथड हैं, एंड बोथ ही मेथड्स, ये मैंने आपको दिया था जब एक पेपर दिया मैं डिविडेंड वाला, जो डिविडेंड का पेपर दिया था उसमें ये cumulative abnormal returns
की बात की यस सर। गई, हाउ वी कैन कंप्यूट दिस Yes, वैल्यू, sir. ठीक है जी। तो ये अभी पता चलेगा, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे कंप्यूट करने, ठीक है। तो ये बाय एंड होल्ड अबनॉर्मल रिटर्न्स है, ये बाय एंड होल्ड अबनॉर्मल रिटर्न्स है, ठीक है। इसको बाय करें। अब होता ये है कि देखें, आपने शेयर बाय किया था ऑफर प्राइस, जब मैं अंडर प्राइसिंग निकालता हूं तो मैं इसको कंपैरिजन करता था ऑफर प्राइस एंड लिस्टिंग प्राइस का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर अनएबल टू नो द ऑफर प्राइस ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे। तो अब क्या होगा, फर्स्ट मंथ का अगर मैंने निकालना है ना, तो फर्स्ट मंथ निकालने के लिए फर्स्ट डे से कंपैरिजन करूंगा, फर्स्ट डे टू फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे टू सेकंड मंथ, फर्स्ट डे टू थर्ड मंथ एंड फर्स्ट डे टू 36 मंथ। तो मैं फर्स्ट डे को लूंगा बेंचमार्क, इसलिए कि वी नो दैट व्हाट वुड बी द प्राइस, और इसलिए ली जा रही है ताकि प्राइस एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस जो है ऑन द फर्स्ट डे it actually adjusts, and then we can find out that that the price actually adjusts itself as per market requirement, and then after the adjustment we can find out कि price कितनी कम हो जाती है, वो पता चल जाता है हमें 2 रुपए 3 रुपए। So that's why this is the benchmark that we need to take, and then we can compute the return in long run, 1 month, 2 month, 3 months, इसको find out करते हैं। Now look at the formula. If we look at the formula, we can find out the 1 प्लस आर आई, ये मैंने रिटर्न निकालना है, और ये मेरे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट जो है ना, अगर आपको कभी प्रोडक्ट को सॉल्व करना पड़े तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है, ऐसे ही है जी। ये प्रोडक्ट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ये प्रोडक्ट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये भी प्रोबेबिलिटी है। मैं इस फार्मूले को ले रहा हूँ, सिर्फ इस फार्मूले को लेना चाह रहा हूँ। इस फार्मूले को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है बाय एंड होल्ड अबनॉर्मल रिटर्न्स का भी, ये फार्मूला था, ये बाय एंड होल्ड अबनॉर्मल रिटर्न्स है। ये फार्मूला है बेसिकली प्रोडक्ट, ठीक है, और आगे लिखा है 1 प्लस आई। ये नजर आ रहा है जी? अब आपको क्या स्क्रीन नजर आ रही है जी? आप कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? आर्टिकल नजर आ रहा है जी सर, विजिबल है जी जी। आर्टिकल आ रहा है नजर? नहीं सर, स्क्रीन में आप राइट कर रहे हैं। अच्छा चलें, राइटिंग बोर्ड है। अच्छा चलें। अच्छा जी, मेरे पास ये फार्मूला आ रहा है, और इस फार्मूले को सॉल्व करना है। ये मेरे पास टी है, ये है टी इज इक्वल टू 1, ये मेरा फार्मूला है जी, मैंने इसको किया टी इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो मेरे पास वी हैव 36 मंथ, तो बड़ा टी जो है वो 36 है, और टी इज इक्वल टू 1 है, और 1 प्लस आर आई। ये 1 तो मैंने लिख दिया, रिटर्न इन द फर्स्ट मंथ, रिटर्न इन द थर्ड मंथ, रिटर्न इन 36 मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको सॉल्व अगर करूं तो 1 रिटर्न है, ये रिटर्न कुछ भी आ सकता है, 10% है तो 10 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और अगले महीने में फर्स्ट से लेके रिटर्न कम हो गया, 0.91 हो गया, 0.91 हो गया, एंड सो ऑन, चलते चलते 36 मंथ मल्टीप्लाई बाय 0.7 हो गया, यानी 1, और आर आई जो अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाता है। सो एक्चुअली प्रोडक्ट का फार्मूला ये देता है, ये प्रोडक्ट है जी मेरे पास। सो प्रोडक्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे सुना जी कभी आपने? ज्योमेट्रिक मीन है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। if you buy and then if you hold, अगर सिंपली अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रिटर्न, so this is the formula that we have, but unfortunately once we can compute these value we will not using these value। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट जब होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, so every return at up to 36 month we need to multiply, but this is not the case in case of here, because if you buy on the first day, यहाँ से फर्स्ट मंथ का रिटर्न निकालूंगा तो ये रिटर्न आ जाएगा, बस खत्म, इसमें प्रोडक्ट नहीं होता। फर्स्ट से लेके सेकंड मंथ आ जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं होता। थर्ड का मतलब है बाय एंड होल्ड, ये आपस में एडजस्ट हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो प्राइसेस हैं दैट एक्चुअली एडजस्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मार्केट बेस्ड प्राइसेस हैं, दैट कैन एडजस्ट देमसेल्फ एज पर condition of the market। if they are favorable then prices can increase
otherwise prices can decrease. So that's why we are trying to take them on the basis that how actually they behave. So that's why I'm not trying to multiply them. Otherwise, if we look at this product means that multiplication, any return that you have over the sample period, you need to multiply, and then you will be getting a value that is -1. ये formula भी पूरा नहीं लिखा है, that is -1, and then we will be getting the answer. But still we can say, because इस 1 को खत्म करना है, जो 1 मेरे पास सारे आ गए, ये 1 is actually original investment. ये रिटर्न आपका बढ़ेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन 1 से बढ़ेगा, ये 1 से कम होगा. So that is the original investment that we have, इसलिए 1 को लिखा यहाँ, ठीक है. तो बाय और होल्ड में इसका मतलब ये होता है, that is a buy and hold abnormal returns, ठीक है. बाद में मैं आता हूँ इसको मैथमेटिकली कैसे करना है, लेकिन सिर्फ अभी जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये क्या होता है, कैसे बनेगा, ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस इज द फार्मूला दैट वी हैव, और ये मीन आ जाएगा इसका टी बिल्कुल डिफरेंट है, और ये टी इसलिए डिफरेंट हो गया बिकॉज वी आर यूजिंग द स्क्यूनेस एडजस्टेड टी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये सारे वैल्यू नेगेटिव्स में होती हैं, तो स्क्यूड होती हैं. सो इन ऑर्डर टू overcome this skewness problem, we are trying to use skewness adjusted t statistics, और ये t statistics मैं use करूँगा. that can be used. n is number of observation, s को calculate किया, that is a standard deviation. इसके ऊपर ये mean है, इसके ऊपर ये line है होनी चाहिए, mean को divide करते हैं standard deviation से, तो मेरे पास s बनेगा. तो इसमें s ये standard deviation is the cross section sample standard deviation, और abnormal returns है, n is number of forms, gamma is the estimate of skewness, that is a coefficient of skewness. तो ये बाय एंड होल्ड abnormal returns है, माइनस ये मीन दिखा हुआ है, ये मीन है, ये भी मीन है, और ये भी मीन है. इनके ऊपर लाइन मेरा ख्याल नहीं लगी हुई, तो लगनी चाहिए. we used and then we can find out this, we solve this. इसको भी मैं कंप्यूट करके दिखा दूंगा, कंप्यूट हुआ है जो मैंने आपको फाइल भेजी है, and then we can compute. now the next is the cumulative abnormal returns. फार्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स दिए में, लेकिन यहाँ cumulative का मतलब ये है कि एक दिन से 1 डे से फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ से थर्ड से फोर्थ मंथ, and so on. So that is based on the cumulative abnormal return. So I'm trying to make a distinguish between these two method that we have. In case of this, we are trying to use it क्योंकि यहाँ ये हुआ था कि एक मंथ से लेके एक साल का मैं निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक मंथ का एक दिन का रिटर्न, उसमें से एक साल का रिटर्न को माइनस करूँ, तो मेरे पास that is known as buy and hold abnormal returns. But इस case of cumulative abnormal returns में होता ये है कि एक मंथ से एक दिन से एक मंथ से दूसरे से तीसरे मंथ, एंड सो ऑन. वी कैन कंप्यूट ऑल दीज वैल्यू. ये मेरे पास कंप्यूट करूंगा, और जब आप कंप्यूट करते हैं, इसको कम्युलेट करेंगे, तो हर मंथ का रिटर्न आ रहा होगा. सो वी नीड टू ऐड टुगेदर. इन सबको ऐड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इन सब रिटर्न्स को हमने सेग्रीगेट कर रहे हैं, एक दिन से दूसरे दिन से तीसरे. सो वी नीड टू ऐड ऑल द रिटर्न्स, या इसको कहूँ कि वेट एलोकेट कर रहा हूँ. Once we are trying to allocate the weight of the returns, then we need to add all the returns. So in case of cumulative returns, in short, we are trying to find the return from 1 day to 1 month to second month, second to third month, and then up to 36 months, we are trying to add all the returns. So that is the cumulative abnormal returns that we have. But in case of buy and hold abnormal returns, we buy on the first day and then we hold it 1 month है, तो 1 month तक करूँगा, first day से लेके 6 month, first day से 1 year, first day से 3 years, that is buy and hold abnormal returns. Whereas in case of cumulative returns, in every month we will be getting a return from previous month, and then we are adding all the returns, providing you as the cumulative returns. So mathematically we can solve them. और मैं निकालता हूँ फाइल ताकि हम इसको सॉल्व कर सके. मैंने भी आपको फाइल भेजी है, अगर वो देख लें. अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इस पे आता हूँ आगे, मजीद मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या करना है. अच्छा जी, मैंने एक्सेल की फाइल जो भेजी है, आप उसको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए. अच्छा जी, नाउ वी हैव अ फाइल, और इस फाइल को मैं देखता हूँ कि कैसे हो सकता है. ये फाइल है, और सबसे पहले बाय एंड होल्ड abnormal रिटर्न्स पे मैं आ रहा हूँ. दैट इज वन ऑफ द कंपनी दैट वी हैव द ऑफर प्राइस, वी हैव द प्राइस
ऑन द इवेंट, फर्स्ट डे पे प्राइस है, फिर आगे ये मंथ है सारे, ये फर्स्ट डे है, ये डे है सारा, फर्स्ट डे 21 days, 37 days, and then here we have the month. आगे जी फाइल देखें जरा। अच्छा ये फाइल है, इसमें हमने रिटर्न बनाने, और मैंने भी बताया कि रिटर्न सब बनाऊंगा, तो रिटर्न बनाने लगा हूँ जी। ये शेयर प्राइस है, और शेयर प्राइस को मैंने लेना है पहले, शेयर प्राइस है, ब्रैकेट लिखते हैं जी, इसको वैसे भी किया जा सकता है, चलें, लॉग प्राइस ऑन द फर्स्ट मंथ माइनस log minus on the first day pricing। मैंने क्या किया जी, मैंने ये किया कि आई एम ट्राइंग टू टेक द log of the share price on at the end of the first month minus log of the share price on the first trading day, and I'm trying to take the difference between these two, that gives you the return, star return on the first, at the end of the first month. So this is the return that we will be getting, and we know that this first month will keep constant because we are using the buy and hold of normal returns. So in this case we have to use dollar, so this first trading day price will not change over the sample, so I'm using it, and I'm dragging it so we can get the return for the rest of the 36 month. Yes, I'm getting these values, and these values we obtain because we know that ठीक है जी। यहाँ तक समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, बिल्कुल सिंपल बात की है। सही फॉर्मूला क्या है जी? ये वही फॉर्मूला लगाया जैसे पहले हमने लगाया था ना अंडर प्राइसिंग के अंदर, मैंने ये लिया लॉग शेयर प्राइस ऑन द एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ माइनस लॉग शेयर प्राइस ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे। तो ये मैंने दोनों को प्राइसेस नजर आ रहा है आपको, तो ये दोनों मैंने लिए, और ऊपर वाली जो प्राइस है फर्स्ट डे वाली उसको मैंने कांस्टेंट कर लिया क्योंकि बाय हमने किया, अगर फर्स्ट डे पे उसको होल्ड करते हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, देन रिटर्न व्हाट वुड बी रिटर्न दैट वी विल बी गेटिंग। जी ये समझ आ रही है किसी को? जी 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 करें। और ये मैडम कुछ कर रही है कि ये जो बड़ी मैडम आपकी? जी मैडम को समझ आ रही है आपको? जी सर। नहीं, ये दूसरी जो मैडम है आपकी। जी सर, अभी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में एब्सेंट थी तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये तो बाकियों को भी नहीं हो रहा क्लियर, लेकिन आप कोशिश कर लें, साथ साथ करें। मैं कर रही हूँ सर, मैं कर रही देख लें हूँ। ताकि मिस ना हो जाए। जी सर। ठीक है जी, ये प्राइसेस मेरे पास आ जाएंगी, इसको देख लें। जी जी आप 12 नजर 0.083। जी इसलिए क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि बाय है ना जी, अज्यूमिंग दैट वी आर बाइंग आईपीओ ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, फर्स्ट डे पे मेरी प्राइस आ गई है, तो मैं असम्पशन दे रहा हूँ फर्स्ट डे पे बाय करूं, एंड वी आर कीप होल्डिंग दिस फॉर 1 month, second month, 5 months, and up to number of months. So how they can behave over the number of months, ठीक है, on first trading day से लेके आगे तक कैसे बिहेव करता है, ये क्वेश्चन। सर ये डॉलर साइन जो है वो प्राइसेस को शो कर रहा है? नो, डॉलर साइन प्राइस के साथ अलग होता है, वो भी लगाना सिखा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ डॉलर का मतलब है कि ये फिक्स उसको वी आर कहते हैं, ट्राइंग टू फिक्स द कांस्टेंट। जी वी आर ट्राइंग टू फिक्स अ सेल। इस सेल को मैंने फिक्स कर दिया, अगर एक साइड पे लगाऊंगा तो रो को फिक्स करेगा, इस साइड पे करूंगा तो कॉलम को फिक्स करेगा, लेकिन अभी मैं उसको ना ऑप्शन दे रहा हूँ कि दोनों उसी को फिक्स करे, रो कॉलम को फिक्स ना करे, सिर्फ उस सेल को फिक्स करे। तो इसलिए डॉलर का साइन एक दफा पहले लगता है, एक दफा बाद में लगता है। तो ये मेरे पास, इसको मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया। इसको देखें, इसको देखना चाहती है तो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आप देखें, ठीक है, दोबारा देखें।
तो अब वी आर ट्राइंग टू फिक्स on the first trading day. So if we buy on the first trading day and we are keep holding 1, 2nd, 3rd up to 36 month, then how much return that will be getting? तो रिटर्न पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और आप देख रहे हैं रिटर्न नेगेटिव होता जा रहा है, आगे जाके भी नेगेटिव हो. सो द नेक्स्ट फार्मूला इज दैट वी नीड टू ऐड इन द फार्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर ऐड करते हैं जी सिर्फ 1 प्लस आर आई को मैंने लिख लिया जी, इसको लिखना है सिर्फ 1 प्लस सब में 1 ऐड करना है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ. तो मैंने सब में 1 को ऐड कर दिया. ठीक है जी, हो गया जी. अच्छा जी, ये हो गया. ठीक हो गया. इसी तरह मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ मार्केट रिटर्न हम सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, बाद में पोर्टफोलियो डेवलप कर लीजिएगा जब कभी समझ आएगी, जरूरत पड़ेगी आपको, अभी इसलिए लॉग ले रहा हूँ, लॉग, और ये इसको ले रहा हूँ लॉग ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, मार्केट रिटर्न द फर्स्ट मार्केट रिटर्न एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ माइनस लॉग. लाइकवाइज वी नीड टू कीप इट एज कांस्टेंट, जिस तरह मैंने शेयर प्राइस को कांस्टेंट किया है, इसी तरह जो मार्केट इंडेक्स ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एन आईपीओ उसको भी कांस्टेंट कर रहा हूँ, उसको भी लॉग लगा रहा हूँ. लॉग लगाने के बाद इसको कांस्टेंट कर रहा हूँ डॉलर के साथ, तो मैंने इसको फिक्स किया यहाँ. Then we are trying to keep it fixed for 36 month. ये आगे चीज को मैं ड्रैग करता हूँ ताकि 36 मंथ तक कंप्लीट हो जाए. So we are trying to fix it for 36 month. So इसका भी वही फार्मूला लगा दिया मैंने. तो रिटर्न ऑन द थर्ड मंथ माइनस रिटर्न ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, मार्केट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया. ठीक है. एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू ऐड 1 सिंपली, आई एम ट्राइंग टू ऐड इन द एंटायर मार्केट रिटर्न. अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई समझ. ठीक हो गया जी. ठीक है जी, क्लियर है. हेलो. यस सर. अच्छा जी, आप बाय एंड होल्ड नॉन रिटर्न जी, बाय एंड होल्ड का फार्मूला ये था मेरे पास, आर आई माइनस, अभी आपने देखा है अगर, तो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ ऊपर ऊपर दे दिया, हाँ लिखता हूँ फार्मूला 1 प्लस आर आई माइनस 1 प्लस आर मार्केट रिटर्न, बिल्कुल यही था, ये फार्मूला दिया हुआ है मेरे पास. सॉरी, ये क्या हुआ, ये फार्मूला दिया हुआ था जी. ठीक है, इसमें माइनस लगा हुआ है, 1 प्लस आर आई मेरे पास ये है, माइनस मार्केट रिटर्न ये है मेरे पास. 1 प्लस आर आई में से माइनस कर रहा हूँ 1 प्लस मार्केट रिटर्न, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है. सो वी विल बी गेटिंग 12% अंडर परफॉर्मेंस ऑन द फर्स्ट मंथ एंड नंबर ऑफ मंथ्स. सर ये दोबारा जरा बता देंगे जी मैं जो आपने कैलकुलेट किए. जी मैं बता रहा हूँ. जी सर. ये ड्रैग ही नहीं हो रहा, एक सेकंड. चले. अच्छा, अभी ये करना है इसमें, ये इसको ये किया 1 प्लस आर आई, ये 1 प्लस आर आई है, ये रिटर्न है आपके ऑन द फर्स्ट मंथ, रिटर्न ऑफ मार्केट ऑन द एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ. सो वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ दिस वैल्यू. ऊपर फार्मूला ये लिखा हुआ है जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिया, उसमें भी यही फार्मूला लिखा हुआ है, 1 प्लस आर आई माइनस 1 प्लस आर एम, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा. So this is the return that we have on the first month. मैं आपसे पूछूं कि 6 month या 3 months में क्या रिटर्न होता है, so you can say that इस IPO में जो अंडर परफॉर्मेंस है that is 56%. तो इसका मतलब है तो the return of IPO is 56% less than the return of the market. Return of IPO is less by 56% than market return. तो ये बता रहा है कि रिटर्न जो है मार्केट
जो आपका आईपीओ का रिटर्न है वो 56% लेस एज कम्पेयर टू द मार्केट रिटर्न, ये होता है। इसी तरह मार्केट रिटर्न बढ़ता ही जा रहा है और ये अंडर 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 प्रॉमिस ही कह रहा हूँ, अंडर प्रॉमिस ही कह रहा हूँ मैंने, अंडर प्राइसिंग कह दिया और अंडर परफॉर्मेंस ही है, ठीक है। दैट इज अंडर परफॉर्मेंस, जो बात मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ दैट इज अंडर परफॉर्मेंस। सो एट द एंड ऑफ द 3 months IPO return of IPO is less 56% less than the market return, that is underperformance. So we actually show that this is underperformance and this underperformance is actually persists in all the cases here. तो ये underperformance जो है सब में एग्जिस्ट करी है पाकिस्तान के अंदर, तो ये underperformance है और ये इसलिए कर रही है बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स। अगर पॉजिटिव होता तो ओवर परफॉर्मेंस आती है। वन ऑफ द स्टडी, इंडियन स्टडी बताती है दैट देयर इज ओवर परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन ओवर परफॉर्मेंस जो है वो ओवर परफॉर्मेंस 1 साल में होती है, उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस होती है। वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सैंपल साइज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर इन विच दे आर ट्राइंग टू कंपेयर, आईपीओ के रिटर्न को कंपेयर कर रहे हैं और ये सारा उस पर बेस करता है, ठीक है। तो ये सारी अंडर परफॉर्मेंस है, इसको सॉल्व कर लूँ। सॉरी ये नीचे नहीं जा रहा, मैं ये शो करना चाह रहा हूँ। ओवर परफॉर्मेंस आती तो वैल्यू पॉजिटिव होती, वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आनी थी, ठीक है। आपकी वैल्यू होती पॉजिटिव में कुछ भी होती है, ब्रैकेट्स नहीं होती उसके साथ, 0.05, 0.10, 0.21 कुछ भी हो सकती थी। तो पॉजिटिव वैल्यू जो भी है वो आपकी शो करती है। तो यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है सारी मेरे पास। सर ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब है कि नेगेटिव शो नेगेटिव है जी, नेगेटिव वैल्यू है, ब्रैकेट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ से देख लेना, ये देखें आपका जो रिटर्न है वो 91% है और मार्केट का रिटर्न 104% है, 4% है। ये 91% है और मार्केट का रिटर्न 104 है, ठीक है, 104%, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करूं तो नेगेटिव 12% आ गया, नेगेटिव 12% है, ठीक है। इसको परसेंटेज बनाना है तो परसेंटेज में आपके सामने वैल्यू ले आया हूं, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है सारी, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं परसेंटेज बना रहा हूँ तो परसेंटेज में बना लेते हैं, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, ऑल दीज वैल्यू आर इन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है इसलिए है क्योंकि ये रिटर्न जो है दैट रिटर्न इज लेस देन द रिटर्न ऑफ द मार्केट, तो ये रिटर्न कम हो गया, आईपीओ का रिटर्न कम है मार्केट से। तो सर 1+RI मार्केट रिटर्न को शो कर रहा है जी, 1+RI रिटर्न ऑफ द आईपीओ शो कर रहे हैं, 1+RM इज शोइंग द रिटर्न ऑफ द मार्केट। ओके ठीक है, ये आईपीओ का है, ये मार्केट का रिटर्न है और इन दोनों को डिफरेंस दें तो ये आंसर आता है। अगर पॉजिटिव आता तो ये ओवर परफॉर्मेंस होती, लेकिन ये नेगेटिव है, दैट इज अंडर परफॉर्मेंस इन ऑल द सिनेरियोस। ठीक है जी, अब ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, फिर उसको कम्युलेटिव एब्नॉर्मल रिटर्न्स बता के बस करता हूँ। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है? सॉरी, ये नजर आ रही है स्क्रीन में, अकेले रह गया जी? नहीं सर, आ रही है सर। सर आप कंटिन्यू करें, नमाज का टाइम के बाद से नमाज। अच्छा चलें, बस मैं इसको फिर खत्म करते हैं, अभी 2 मिनट मुझे दे दें। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है वो है मेरे पास जो हमने डिस्कस करना है वो है कम्युलेटिव एब्नॉर्मल रिटर्न्स। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास कम्युलेटिव एब्नॉर्मल रिटर्न्स हैं, इनको निकालना है। अगले स्लाइड, अगला शीट देखिए तो उसमें कम्युलेटिव एब्नॉर्मल रिटर्न्स दिया हुआ है, इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं, आप देख सकें। दैट इज द कम्युलेटिव एब्नॉर्मल रिटर्न्स, इसको निकालना है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसका जो है इसमें लेते हैं लॉग रिटर्न एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, और मजीद बड़ा करता हूँ। लॉग मैंने लिया है करंट मंथ का माइनस लॉग ऑफ द रिटर्न शेयर प्राइस ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, इसको मैंने ले लिया, यहाँ तक लिया। इसमें आपने डॉलर का साइन नहीं लगाना, बिकॉज वी आर कंसर्न दैट व्हाट वुड बी द रिटर्न फ्रॉम द प्रीवियस डे, फ्रॉम प्रीवियस मंथ, तो इसमें ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको ट्रैक करता हूँ तो ये मेरे पास 1 मंथ टू द प्रीवियस मंथ, 1 टू प्रीवियस मंथ जो भी रिटर्न आपके पास आएंगे वो दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ रहे हैं, अब इसको तो किसी पे क्लिक करूं तो ये आएगा 1 टू द प्रीवियस, 1 टू द प्रीवियस, तो ये 1 टू द प्रीवियस मेरे पास रिटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। ये रिटर्न्स मेरे पास आते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रही है? ये सर ये शो कर रहा है कि जो हमारी करंट प्राइसेस हैं वो हमारी हिस्टोरिकल डेटा पे बेस कर रही हैं, ये हिस्टोरिकल प्राइसेस पे नहीं, वो सारी पहले भी हिस्टोरिकल प्राइसेस थी, अभी हिस्टोरिकल प्राइसेस हैं। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि 1
मंथ टू द प्रीवियस मंथ, सिर्फ इसका मतलब है। बाय का मतलब बाय एंड देन यू होल्ड इट फॉर वन करंट टू ईयर। प्रीवियस। जी बिल्कुल, ये करंट टू प्रीवियस जो है ये वो पहले भी हिस्टोरिकली प्राइसेस थी, ऐसी बात नहीं थी, प्राइसेस सारी हिस्टोरिकल थी, लेकिन वन टू द प्रीवियस, वन टू द प्रीवियस दैट इज द कम्युलेटिव एब्नॉर्मल रिटर्न। यानी वन मंथ से एक दूसरे मंथ में क्या रिटर्न आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था, वन मंथ से वन डे से लेके वन डे से 36 मंथ तक रिटर्न आया, तो ये मैंने इस तरह निकाल लिया, ठीक है, वन मंथ टू द प्रीवियस मंथ। अब इसमें वन ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा पहले, वन प्लस ये रिटर्न मेरे पास ऐड हो जाएंगे, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह मार्केट रिटर्न भी आएगा वन टू द प्रीवियस, वन टू द प्रीवियस, वन टू द प्रीवियस, तो ये मेरे पास आ रही है वैल्यू वन टू द प्रीवियस, ये मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसको जी 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 मैंने खोला जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, वन है, वन इज योर, ना ना ना, वन वन इज योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, वन इज योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड इट एक्चुअली शोइंग द इंक्रीज, जो भी है वो पॉइंट वो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। यानी 8% को अगर मैंने वन से निकाल दिया, वन इज 8%, अगर तो 8% निकल गया तो 91 ही बचता है, तो वन वन ही है, वन इज नॉट परसेंटेज, ठीक है। देखिए आर आई जो है ना वो आपका रिटर्न है, और वन जो है ना वो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रेफर कर रहा है। यानी अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था तो रिटर्न 8% कम हो गया, 8% कम हो गया 1 रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी वैल्यू बनी है 0.91, ठीक है। वन, जी बिल्कुल, ये वन जो है ना आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से कम होकर वैल्यू 0.9 पे बची है, आगे वन भी आ रहा है एक जगह पे जहां देख रहे हैं आर आई पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये बेसिकली वेल्थ रिलेटिव है, अभी जरूरत नहीं इसकी, मैं सिर्फ थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ कि इसको सॉल्व कर लूँ, मैं इस वक्त खत्म करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसी तरह ये वन प्लस आर एम देखें वो बढ़ गया है, आप देख लें, तो रिटर्न अगर पॉजिटिव है तो वन से बढ़ के 103 हो जाएगा, ठीक सर है। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारा नेगेटिव रिटर्न है, दैट्स जी व्हाई। बिल्कुल, यू इन्वेस्टेड 1 रुपी टुडे but after a month you can find that the value of your investment now has decreased from जी 1 सर to हमारी, 0.9। ये सर हमारी 100% इन्वेस्टमेंट थी, बट माइनस 8.34 हमारा नेगेटिव रिटर्न था, वो उसमें से लेस किया, तो देन हमारे पास जो रिमेनिंग हमारी जी इन्वेस्टमेंट है वो शो करी बिल्कुल, है। वन जब भी आप कभी भी किसी मैथमेटिक फाइनेंस में जब भी कोई वन पढ़ेंगे तो वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को शो करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वन यस थी, अब यस। क्या हुआ। अच्छा अच्छा जी, ये अब और से सुनना जरा, असल काम अब मैंने करना है, एबनॉर्मल रिटर्न्स निकाल रहा हूँ। कम्युलेटिव एबनॉर्मल रिटर्न्स निकालने से पहले, ये कम्युलेटिव एबनॉर्मल रिटर्न्स से निकालने से पहले एबनॉर्मल रिटर्न्स पहले निकाले जाते हैं। एबनॉर्मल रिटर्न सिंपल जो है वो बनेगा आर आई माइनस आर एम, वन प्लस आर आई, सॉरी चले, वन प्लस आर आई, ये वन प्लस आर आई माइनस वन प्लस आर एम, ये दोनों को सॉल्व करना है। एच में से के माइनस कर रहा हूँ, एच में से के माइनस कर रहा हूँ, एंड देन यू विल बी गेटिंग एबनॉर्मल रिटर्न्स, ठीक है। इसको भी मैं साइन लगाता हूँ ताकि आपको नजर आए, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो ये एबनॉर्मल रिटर्न्स द्वारा सिंपल आर वन प्लस आर आई में से वन प्लस आर एम माइनस कर रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था कि कम्युलेटिव का मतलब ये होता है, जी 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 बोलें। बिल्कुल यही किया था, नहीं होगा, वो बाय एंड होल्ड था, नहीं वो चीज नहीं है, वो बाय एंड होल्ड था, यानी उसमें मैंने कांस्टेंट किया था फर्स्ट, यहाँ कांस्टेंट नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, पहली वैल्यू तो शायद सेम हो सकती है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट मंथ में, लेकिन आगे नहीं होगा। अच्छा जी, पहली वैल्यू सेम होगी, इसके बाद नहीं होगा। अच्छा अब सुने, ये एबनॉर्मल रिटर्न्स आ गया। कम्युलेटिव का मतलब होता है, मैंने आपको कहा कि जो रिटर्न आपके हर मंथ में आएंगे उसको ऐड करना है आपने, जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर तब बनेगा। देखिए आप, ये रिटर्न एक दिन का है, एक मंथ का है, सेकंड मंथ का है, थर्ड मंथ का अलोन, इट दीज आर नॉट द कम्युलेटिव रिटर्न्स। सो कम्युलेटिव बताने के लिए जरा गौर से देखेंगे जरा इधर, कम्युलेटिव बनाने के लिए मैं इसी कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि ये रिटर्न इधर आ जाए, ये रिटर्न इधर आ गया है,
ठीक हो गया जी, रिटर्न आ गया, यही रिटर्न मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल, तो मेरे पास वैल्यू आ गई। लेकिन कम्युलेट करना है जी, कम्युलेट का मतलब होता है इसको और इसको Add एल को up प्लस करेंगे। कर, हाँ जी एड अप कर रहा हूँ। एम और जो एल का जो जिस मंथ में करंट है प्रीवियस एंड द करंट, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये अब कम्युलेट होता जा रहा है, ये सारे कम्युलेट हो गए। मैं अब आपसे पूछूं कि एक मंथ से लेके मैं आंसर क्या है, तो मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको, सेकंड। मैं आपसे पूछूं कि 12 मंथ्स में रिटर्न कितना आया कम्युलेटिव अबनॉर्मल रिटर्न्स, ये नहीं है आपका आंसर, ये आपका जो कम्युलेटिव अबनॉर्मल रिटर्न बनेगा वो बनेगा 121.27, Yes. दिस इज द आंसर दैट यू हैव। सो कम्युलेटिव अबनॉर्मल रिटर्न्स डिफरेंट होता है और 24 में रिटर्न्स डिफरेंट होगा, एंड देन 36 मंथ का जो आंसर है वो ये होगा। So these are the cumulative abnormal returns. So cumulative abnormal returns means that the return that we'll be getting from one month to the previous month, and then we are adding. इसको इसलिए मैंने अलग लिखा है abnormal returns को, क्योंकि हर month का हमने लेना abnormal returns, and then we need to add together all the returns that we will be getting. Now we are trying to cumulate the returns. So this is the difference that we have in order to find out the long term returns. ये है। इसके अलावा बहुत सारे methods अभी add करने हैं, Carhart model है, फैमा फ्रेंच मॉडल है, और बहुत सारे फैक्टर्स मैंने भी ऐड करने नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको ऐड करूंगा। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर इसको खत्म करते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, बता दें। ये सर ठीक है। सर कौन सा मेथड जो ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बाय एंड होल्ड नॉर्मल रिटर्न्स जो है वो कहते हैं कि बाय एंड होल्ड, इसकी पीछे रीजन है क्योंकि क्योंकि बाय एंड होल्ड जो है वो ज्योमेट्रिक मीन पे बेस करता है, अरिथमेटिक मीन जो है वो सॉरी जो कम्युलेटिव अबनॉर्मल रिटर्न्स है वो अरिथमेटिक मीन पे बेस करता है, क्योंकि उसको मैं बाद में ऐड करता जा रहा हूँ, कम्युलेट करता जा रहा हूँ, वो बेसिकली एवरेज, वो एवरेज नहीं है, ये एवरेज होती जा रही चीज है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूं कि ज्योमेट्रिक मीन बेहतर होता है या अरिथमेटिक मीन बेहतर होता है, तो इसका आंसर है कि ज्योमेट्रिक मीन बेहतर होता है। ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के रिजल्ट हमेशा कम होते हैं, अरिथमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट हमेशा कम आएगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें, यानी 100 रुपीज इन्वेस्ट करें और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और उस 0 वैल्यू को अगर मैं रिटर्न निकालना चाहता हूं तो पता चलेगा आपका रिटर्न 0 है, लेकिन अगर मैं एवरेज पे चला जाऊं तो उसका रिटर्न 50% बन जाएगा, तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन शायद अप्रोप्रिएट नहीं होता। So there is a controversy in literature that which kind of method that you need to follow. So buy and hold abnormal return is one of the appropriate method we can use. लेकिन जनरली लोग जो है कम्युलेटिव अबनॉर्मल रिटर्न्स यूज करते हैं, जो पेपर मैंने आपको दिया है उसके अंदर भी कम्युलेटिव अबनॉर्मल रिटर्न्स की बात की गई है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास जो है वो अब फेस टू फेस होगी, तो मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग इसको प्रेजेंट करें, जो मैंने आपको आर्टिकल दिया है सारे बारी बारी थोड़ा थोड़ा मुझे बता दें कि क्या होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक असाइनमेंट दूंगा आपको लिखने के लिए 2-3 पेजेस की, कि कैसे हमने इसको प्रूफ करना है, जो मैंने आपको इवेंट स्टडी की बात की है, जो कोविड आया उसको कैसे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, हर एक वाला इंडिविजुअल असाइनमेंट दूंगा, कैसे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है, और फिर कैसे अभी एक फार्मूला लगाऊंगा, फिर नेक्स्ट में जब हम आगे चले जाएंगे गार्च में, तो फिर ई गार्च या गार्च मॉडल लगा के हम देखेंगे कि उसकी रिस्कीनेस को टेस्ट करूंगा, मुख्तलिफ उसी असाइनमेंट को लेके आगे चलूंगा। तो फिर ये इस तरह इंशाल्लाह, ठीक है, पहले आप प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट में कुछ बातें करूंगा, जो हमें आईपीओस को बस थोड़ा सा लगे इसको कंक्लूड करना है, अभी इसमें कुछ और भी मॉडल्स मैंने डिस्कस करने, तो वो कैसे बनेंगे। ठीक है, जब आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। जी सबात या मिस नफीसा, आपने कुछ पूछना है? नहीं ठीक है सर। और मौसम आपने कुछ पूछना है यार, क्या नहीं? सर कौन सा आर्टिकल प्रेजेंट करना है? थैंक यू। डिविडेंड का मैंने आपको भेजा था ना, एक छोटा सा, किसी का बहुत पुराना आर्टिकल है, तो बस उसको थोड़ा सा पढ़ लें कैसे मॉडल सेमी स्ट्रांग मार्केट के बारे में। बिल्कुल 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 सिंपल सा है वो, तो बहुत पुराना टॉपिक है, उसके बहुत नए वर्जन है, लेकिन मैंने खुद आसान सा टॉपिक दिया है ताकि आप उसको देख लें। ठीक है सर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये सेमी स्ट्रांग और जो वीक इंफॉर्मेशन की मार्केट जो है, इसको थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है। अच्छा जी, वीक फॉर्म जो है ना वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे बेस करता है, वीक फॉर्म जो है ना हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे बेस करता है, यानी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट इज एफिशिएंसी, जो है वो वीक फॉर्म एफिशिएंसी उसको हम कहते हैं। लेकिन जनरली जो सेमी स्ट्रांग होता है, सेमी स्ट्रांग पाकिस्तान में भी सेमी स्ट्रांग एग्जिस्ट करेगा, यूएस में भी सेमी स्ट्रांग एग्जिस्ट करेगा, लंदन में भी सेमी स्ट्रांग एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि इफ देयर इज एनी न्यूज इन द मार्केट
the stock prices can adjust themselves accordingly. If the news is good, the prices can increase. If the news is bad, the prices can. So आप कहते हैं ना market is efficient. सर अब इस मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन रिलेट करते हैं उससे स्टॉक प्राइसेस जो है ना वो अप्स एंड डाउन होती हैं या नॉर्मल इंफॉर्मेशन से? नहीं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन से मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से निकाल के मार्केट के चला जाता हूँ. मार्केट में जो भी फैक्टर है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज देती है, तो हाउ द स्टॉक प्राइसेस कैन एडजस्ट रिएक्ट दोस इंफॉर्मेशन. इफ द मार्केट परसीव इट पॉजिटिवली, तो प्राइसेस जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं. इफ द मार्केट परसीव इट नेगेटिवली, तो स्टॉक प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं. तो ये इसका मतलब है कि इंस्टेंटली एनी न्यूज कैन एब्जॉर्ब द स्टॉक प्राइसेस इंस्टेंटली, एंड देन we can find out the price, the stock can increase, stock prices can decrease. तो इसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रांग होता है. तो ये सेमी स्ट्रांग है. दुनिया में सेमी स्ट्रांग मार्केट एग्जिस्ट करती है. आपको क्वेश्चन ये था कि डिविडेंड जो दिया गया है, डिविडेंड जब अनाउंस होता है उसके बाद स्टॉक प्राइसेस कैसे रिएक्ट करती हैं. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करती हैं. उसमें ग्राफ भी वही शो कर रहा है कि जिस इवेंट को जीरो, जिस दिन इवेंट है वो जीरो है, उसके बाद अगर पॉजिटिव की बात कहता हूँ +1 +2, तो स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं. Or but you cannot observe that these prices can be constant for a long period of time, but after 10 to 20 days the prices can revert back, क्योंकि वो basically जो है वो एक न्यूज़ है, एक hype है मार्केट के अंदर, that's why the prices increases. But actually the impact of dividend can be very small, so that's why investors can take and convert them into cash. So that's why this factor cannot be taken into account for a long period of time. तो इसलिए prices फिर revert होना शुरू हो जाती हैं. सर पब्लिक इंफॉर्मेशन का जो रिएक्ट होता है अब की जो सेमी स्ट्रांग मार्केट में है, बिल्कुल सेमी स्ट्रांग पे, क्योंकि जो आपकी स्ट्रांग फॉर्म है दैट इज इलीगल मार्केट, तो उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे. हम सिर्फ सेमी स्ट्रांग की बात कर रहे हैं. सर मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, जो हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दो हैं, जो वीक फॉर्म मार्केट है वहाँ पे तो दोनों लाइक अप्लाई होंगे. टेक्निकल भी हमारा वर्क करेगा और जो फंडामेंटल है दोनों, बट जो हमारी सेमी स्ट्रांग होगी उसमें जस्ट फंडामेंटल वर्क करेगा. इज इट ट्रू? हाँ बिल्कुल. हम यहाँ लफ्ज यूज होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन. पब्लिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो भी न्यूज में आती है वो डिविडेंड से रिलेट करती है, वो उस कंपनी के किसी भी मर्जर एक्विजिशन है, लॉसेस को रिलेट करती है, या मार्केट का कोई फैक्टर है जिसकी वजह से. एंड बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक इन्फॉर्मेशन द स्टॉक प्राइसेस कैन एडजस्ट themselves as per market condition. That is known as a semi strong form efficiency. सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन तो दोनों फिर जो वीक फॉर्म है और जो सेमी स्ट्रांग है दोनों पे फिर इफेक्ट करेगी ना? पब्लिक जो वीक फॉर्म कहते हैं ना, वीक फॉर्म की मतलब ये होता है कि हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है. पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, वो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन पे वो कहता है कि जो सेमी स्ट्रांग का मतलब है, वीक फॉर्म का मतलब ये है कि जो मार्केट के जो एफिशिएंसी है वो बेस्ड करती है हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन के. प्राइस बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी आगे जाके, कम हो रही है तो वो कम होगी. तो पब्लिक की बात नहीं की जाती वहाँ. टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सो इट्स मीन कि टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे वर्क करता है जो हमारी वीक फॉर्म में है. जी बिल्कुल. लेकिन टेक्निकल और ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल सेमी स्ट्रांग में होती है. वहां सिर्फ एक लफ्ज यूज होता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो प्राइसेस अपने आप को शो करती हैं उसकी, तो उसको हम कहते हैं. जी हिस्टोरिकल जो प्राइसेस हैं उन्हीं के ऊपर हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी बेस करता है. बिल्कुल. वो तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो उसी पे बेस करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी पे जो प्राइसेस डिटरमिन की जा सकती हैं. ठीक है ना. तो प्राइसेस हम कह रहे हैं कि बढ़ी हैं तो बढ़ेंगी, कम है तो कम होंगी. ठीक है, शायद किसी केस के अंदर वाइस वर्सा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली. तो इसलिए हम कह रहे हैं. लेकिन पब्लिक इंफॉर्मेशन इज स्ट्रांग बिकॉज the market is efficient in any case. Once there is news and then prices can absorb those changes, that is known as a weak form efficiency. उसको हम कह रहे हैं सेमी स्ट्रांग एफिशिएंसी, कि मार्केट जो है सेमी स्ट्रांग एफिशिएंट है, that can absorb any news that happen in the market. सर स्ट्रांग फॉर्म ऑफ जो मार्केट है वो इलीगल क्यों है? लाइक अभी आपने मेंशन की है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर इलीगल कैसे है? इलीगल इसलिए इसके some of the members of the board या member of the company can bypass information to the outsiders. यानी कोई बोर्ड मेंबर जो है मार्केट में कल कह देता है किसी जगह जाके अपने दोस्तों को कि डिविडेंड कंपनी अनाउंस करने लगी. सर इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो है, जी इनसाइड इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं. आसान लफ्ज़ों में इनसाइड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि दिस इन्फॉर्मेशन हैज नो ग्राउंड, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, बट बेसिस बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द मार्केट जो है फौरी तौर पे बूस्ट हो जाती है. अगर मैं दिखाऊं आपको, स्टॉक फौरन बढ़ जाता है, प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है. बट दिस मार्केट हैज नो फंडामेंटल्स, नो ग्राउंड, सो इमीडिएटली द प्राइस कैन रिवर्ट बैक. इसको इलीगल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दिस एक्चुअली हैपेंस
because the board members या जो भी लोग हैं, they want to convert their investment into cash, because once the price will increase, they immediately convert their cash into cash, and then because the price has to revert back, और price वापस आ जाएगी 24 hours में आए या 2 दिनों में वापस आए, price वापस आ जाएगी। And then strong form, जो strong market है, सर उसकी तो definition ये नहीं कि वो एक perfect market है, like उसमें कोई भी news या कोई भी affect नहीं करती। नहीं ऐसी नहीं है। That's why I'm saying that this semi-strong market is actually prevailing in all the markets, but this strong form efficiency is an illegal market because insiders are provide some inside information that is not relevant, that are not actually actual information that can be given to the outsiders. सर ये strong जो मार्केट है, ये इसमें आप स्पेकुलेशन को कहेंगी? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि इलीगल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी बोर्ड, कोई भी कंपनी का मेंबर है, वो कुछ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी गिवन टू द आउटसाइडर्स, एंड वंस यू कैन प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स, और मार्केट के कुछ लोग उससे बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल रिटर्न्स, प्राइस 10 रुपए की जो शेयर है ना, उसकी वैल्यू उसी दिन 18 पे चली जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन प्राइस में अपने आप को रिवर्ट करना है। इफ द प्राइस इज हैव नो बेसिस, नो ग्राउंड्स, द प्राइस हैज टू बी रिवर्ट बैक। सो वो इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि जो डायरेक्टर्स हैं या जिन लोगों के शेयर्स हैं, दे कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश, क्योंकि प्राइस तो बढ़ नहीं रही थी, प्राइस तो ज्यादा नहीं है शायद, लेकिन प्राइस ज्यादा हो गई है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ लीगल मार्केट। सो द परसेप्शन इज दैट, as the name suggested, that is a strong form efficiency, the market is perfect. That is not correct. So market is illegal if information is bypassed from one insider to the outsiders. So that is not the case. Okay, sir. Thank you. ठीक है अदनान, ये मेहर आपने कुछ पूछना चाहिए? मेहर क्या है जी नाम इसका? मायार। ये जी हमारे मायार। ये मेयार खुद ही सेट कर लिया आपने? सर ये मर्दान के इलाके का नाम है। अच्छा चलें, ये फिर बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में बात होगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।